Hello everyone. In this video we're going to discuss the reasons for the revolt of 1857. Now the East India Company had slowly and gradually conquered most of India with its economical, political and military tactics over the 250 years up till 1857. Now this has led to the oppression of the masses at different levels of society and geography. And this operation happened due to the British expansionist policies, economic exploitation and administrative innovation. Now this affected and brought anger to a lot of people such as the princely state rulers, zamindars, peasants, traders, artisans, pandits, maulvis, etc. And this anger boiled, eventually leading to a revolt in the year 1857, the causes of which we are going to discuss in this video. Alright, let's begin. Right, so what were the reasons for the revolt of 1857, which is also known as the First War of Independence? इन reasons को हमने काफ़ी सारे sections में divide किया है so that it is easy for you to understand and remember the reasons for the revolt of 1857. अब reasons और causes हम पढ़ क्यों रहे हैं? Although the main focus is the revolt, but एक revolt या किसी भी एक incidents के लिए कोई एक cause होता है, कोई reason होता है. It could be one or many. And this revolt was definitely not a coincidence. Coincidences don't happen at such a large scale. और इस revolt के जो ये reasons हैं ये एक दिन में भी नहीं हो पाए थे, इनको काफ़ी time लगा था. It took years and decades for the discontent amongst the masses to boil up to a situation where a revolt was organized. अब ये reasons कुछ इस तरीके से हैं. सबसे पहला है economic reasons. The second being the political reasons. Third being the administrative reasons. Then one of the most important ones ये थे socio-religious reasons. Then another factor which was responsible for this revolt and the confidence amongst the people was the influence of current events that were happening in the region. और सबसे एंड में और सबसे बड़ा रीजन जो कि निकल के आया इन दी इवेंचुअल ईयर्स वाज द डिसकंटेंट अमंग द सिपाहीज. जो सिपाही थे ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उनमें जो डिसकंटेंट था उसकी वजह से रिवोल्ट फ्यूल हुआ. अब इन्हीं रीजंस को हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द इकोनॉमिक रीजंस. नाउ बिफोर वी बिगिन विद द इकोनॉमिक रीजंस, इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरे सिनेरियो में जो की प्लेयर था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. दिस वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. अब 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था एंड विच एंडेड इन 1858, उससे पहले जो मेन इंग्लिश बॉडी इंडिया में प्रेजेंट थी उसका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. Now this was not a government on behalf of the British in India. Neither was this the political representative of the British initially. शुरुआत में English East India Company was just a trading body, a trading company which was formed by a royal charter on 31st of December 1600. And this royal charter was given by the Queen of England, जिनका नाम था Elizabeth I. और ये royal charter दिया गया था to trade in South and Southeast Asia. अभी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनिशियली सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिखाई थी, ट्रेड के इंटरेस्ट दिखाए थे इंडिया में. और धीरे धीरे इनको समझ में आने लगा कि अपनी ट्रेड में मोनोपोली करने के लिए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत बड़े लेवल पे बढ़ाने के लिए इनको पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्पेक्ट्स भी बीच में लाने होंगे, अपने ट्रेड की सिक्योरिटी के लिए और पॉलिटिकली पूरे कंट्री को होल्ड करने के लिए, जिससे कि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट एम्पलीफाई हो सकें. अब इनका मेन एम ये था कि इंडिया से रॉ मटेरियल्स और वेल्थ ड्रेन करनी है, इंग्लैंड में पहुंचानी है और वहाँ से जो फिनिश्ड गुड्स आएंगे उनको इंडिया में प्रमोट करना है और बेचना है. सो इंडिया वाज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड वेल्थ फॉर इंग्लैंड एंड ऑल्सो अ मार्केट फॉर द फिनिश्ड गुड्स. अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 1760s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में बहुत जोर शोर से आई थी, जहाँ पे मैकेनाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, मशीन्स बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप की जा रही थी. तो उससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी इंडस्ट्रीज़ की. और जो बहुत सारे फिनिश्ड गुड्स थे जिनके लिए मार्केट्स चाहिए थी इंग्लैंड को, वो मार्केट्स मिली उन्हें अपनी कॉलोनीज में. सो इंडिया वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स फॉर ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स. अब ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक हेड हुआ करता था विच वॉज द गवर्नर जनरल. और गवर्नर जनरल की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि आपको पता होना चाहिए. जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स करते हैं. और ये स्टोरी ये है कि गवर्नर जनरल इंडिया का काफ़ी बाद में बनाया गया था. सबसे पहले गवर्नर जनरल सिर्फ बंगाल का हुआ करता था एंड दैट पर्सन, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वैरन हेस्टिंग्स. इनका टेन्योर था अबाउट 1773 to 1785. So basically he was the Governor General, the first Governor General of the Presidency of Fort William in Bengal.
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, एक बंगाल, एक मद्रास और एक बॉम्बे। लेकिन गवर्नर जनरल सिर्फ बंगाल का होता था। मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी के पास किसी को भी अटैक करने की या मिलिट्री एक्टिविटी करने की पावर नहीं थी। दे हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ऑफ बंगाल, ही वॉज वैरन हेस्टिंग्स। ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद बारी आती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। अब ये डेजिग्नेशन कब दी गई? दिस हैपेंड ड्यू टू द इंडियन चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833। और इस एक्ट के आने के बाद जो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, हिज नेम वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। राइट, सो हमें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पता है और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पता है। इन दोनों के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद बारी आती है इस इंसान की जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। इनकी भी सिग्निफिकेंस है इंडियन हिस्ट्री में, बिकॉज ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, इट वॉज क्रश्ड इन 1858 बाय द ब्रिटिश। और उसके बाद काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए थे व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिसॉल्व्ड एंड द ब्रिटिश क्राउन टुक कंट्रोल ऑफ इंडिया इनटू देयर हैंड्स। और रिवोल्ट के टाइम पे लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जब रिवोल्ट खत्म हो गया और नया तरीके से गवर्नमेंट स्टार्ट की गई, तब इनको सबसे पहला वाइस रॉय डेजिग्नेट किया गया। राइट, सो अब हमें ब्रिटिश की और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीयत पता लग गई है, देयर इंटेंशंस व्हाइल डूइंग बिजनेस इन इंडिया। अब हमें ये देखना जरूरी है कि उन इंटेंशंस की वजह से कैसे डिस्कंटेंट डेवलप हुआ इन द मासेस ऑफ इंडिया और क्या क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से रिवोल्ट शेप अप हुआ। सबसे पहले हमें देखना है इकोनॉमिक रीजंस एंड विच ऑफ द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर अंडर अ ह्यूज इंपैक्ट ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस। सबसे पहले थे पेजेंट्स। अब ये वो लोग हैं जो कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पर डिपेंड करते थे। ये छोटे मोटे किसान थे, मजदूर थे, जिनके पास बहुत छोटे छोटे एग्रीकल्चरल लैंड थे। और क्योंकि ब्रिटिश का बहुत ही हार्श टैक्सेशन सिस्टम था, जिसकी वजह से दे हैड टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स। और इन मनी लेंडर्स ने मजदूरों को इतने हाई इंटरेस्ट पे पैसा दिया कि वो पैसा वापस ही नहीं हो पाया एंड इवेंचुअली दे ग्रैब्ड द लैंड दैट वाज इन द पोजीशन ऑफ द पेजेंट्स। और ऐसे ये बहुत सारा लैंड इकट्ठा करते गए तो ये जमींदार बन गए। सो दीज मनी लेंडर्स इवेंचुअली बिकेम जमींदार्स एंड द पेजेंट्स इवेंचुअली लॉस्ट देयर लैंड। अपनी जमीन चली गई, उससे जो इनकम आती थी, जो फूड सप्लाई थी फैमिली के लिए, वो रुक गई। ये लोग काफ़ी ज़्यादा कर्जे में हो गए। तो दे हैड अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट अलॉन्ग विद एंगर फॉर द ब्रिटिश। अब दूसरे लोग थे आर्टिजन्स एंड हैंडीक्राफ्ट्समैन। अब इनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इसलिए आई बिकॉज द ब्रिटिश स्टार्टेड प्रमोटिंग देयर ओन गुड्स ड्यू टू देयर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इवेंचुअली फोर्स्ड देम आउट अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल बिजनेस। एक और रीजन ये भी था कि पॉलिटिकली जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश पीपल वर गेनिंग कंट्रोल ओवर द प्रिंसली स्टेट्स। कैसे कैसे करके वो प्रिंसली स्टेट्स को हथिया रहे थे, विच इवेंचुअली लेड टू द लॉस ऑफ रियल पावर इन द हैंड्स ऑफ द प्रिंसली रूलर्स। और क्योंकि इन रूलर्स के हाथ से पावर चली गई तो उनके जो खास आर्टिजन जो हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, उनकी भी नौकरियां चली गई। सो दीज पीपल वर ऑल्सो डिस्ट्रेस्ड एंड इन एंगर। तीसरा केस है जमींदार्स का। अभी जो मनी लेंडर्स और लोग जो जमींदार बन गए बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल, इवेंचुअली दे ऑल्सो फेल्ट ऑप्रेस्ड। अब ब्रिटिश के लैंड रेवेन्यू और टैक्सेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हार्श थे और इस हार्श सिस्टम की वजह से जमींदार्स के हाथ से भी धीरे धीरे लैंड जाना शुरू हो गया था। इट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इससे इन जमींदार्स की जो इज्जत थी इनके गांव में, इनके एरिया में, बहुत इज्जतदार लोग ये माने जाते थे। और जब इनका लैंड छीन लिया गया तो इनके हाथ से वो इज्जत भी चली गई। दे फेल्ट इंसल्टेड और इससे इनके मन में भी वो एक गुस्सा बनता चला गया। बेसिकली दे वर सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू समहाउ गेट देयर लैंड बैक। देयर वाज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और ये सभी लोग जमींदारी, रेतवारी और महलवारी के शिकार होते चले गए। Now here you can see कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटिश गुड्स को प्रमोट कर रहे थे और कैसे इंडियन पॉपुलेशन वाज वेरी डिस्ट्रेस्ड बाय द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल रीजंस और पॉलिटिकल रीजन में सबसे बड़ा रोल है प्रिंसली स्टेट्स का। Now as I've already discussed, the British and the East India Company had economic interests in India, जिनको पाने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल एडवांटेजेस लेनी शुरू करी एंड इवेंचुअली टू सस्टेन दैट पॉलिटिकल एडवांटेज दे हैड टू रिजॉर्ट टू मिलिट्री एडवांटेज। इस पॉलिटिकल एडवांटेज को रखने के लिए उन्होंने धीरे धीरे सभी प्रिंसली स्टेट्स के साथ टाई अप्स करने शुरू किए। उनको ये एहसास दिलाना शुरू किया कि आपस में प्रिंसली स्टेट्स को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खतरा है और उस खतरे को दूर करने के लिए ब्रिटिश सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है एंड ब्रिटिश वुड प्रोवाइड सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री।
और वो एक दौर भी था जब प्रिंसली स्टेट्स आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डरते थे। दे वर अफ्रेड दैट द अदर प्रिंसली स्टेट वुड अटैक देम बिकॉज ऑफ देयर हिस्ट्री ऑफ अ लॉट ऑफ बैटल्स एंड वॉर्स। इसीलिए अपनी आर्मीज को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने ब्रिटिश की मिलिट्री का सपोर्ट लेना शुरू किया एंड दैट इज वेयर दे ब्रॉट इन देयर पॉलिटिकल एजेंडा। इस सपोर्ट को बोला जाता था सब्सिडरी अलायंस, which was part of a greater interest of British known as the effective control। एक प्रिंसली स्टेट पे पॉलिटिकल कंट्रोल करने के लिए उसको पहले अपनी आर्मी दी जाए, उसके बदले में उससे कंपनसेशन ली जाए, मंथली मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी, और अगर वो पूरा नहीं हो पाता है, अगर मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं प्रिंसली स्टेट्स, तो उस केस में कुछ पार्ट उसकी प्रिंसली स्टेट का सीड कर लिया जाएगा एंड दैट वुड बी अंडर द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। इस तरीके से काफी ज्यादा लैंड धीरे धीरे ब्रिटिश ने अपने अंडर कर लिया। Along with that, the East India Company started sending a political representative to the court of the princely state ruler। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव था, इसका पूरा रोल रहता था टू कंट्रोल द कोर्ट एंड टू प्रोवाइड एन इनसाइट टू द ब्रिटिश अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रिंसली स्टेट। अब इस सब्सिडरी अलायंस और इफेक्टिव कंट्रोल वाली पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। धीरे धीरे जब ईस्ट इंडिया कंपनी की ग्रिप इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पे टाइट होती गई और एक ऐसा टाइम आया व्हेन दे वर एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ बिग पावर इन द रीजन, तब उन्होंने अपनी कुछ और पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी शुरू करी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नाउ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, और इसमें यह बोला गया था कि अगर कोई एक प्रिंसली स्टेट का रूलर है और अगर उसका कोई लीगल मेल एयर नहीं है, कोई लीगल संतान नहीं है, तो उस केस में उसकी प्रिंसली स्टेट को कैप्चर कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। दिस वाज पार्ट ऑफ द इफेक्टिव कंट्रोल पॉलिसी। अब सब्सिडरी अलायंस का जो नेक्स्ट पार्ट था, जिसमें धीरे धीरे प्रिंसली रूलर्स को स्क्वीज आउट किया जा रहा था, उसमें इन रूलर्स को एक पेंशन दी जाती थी, और धीरे धीरे उस पेंशन को भी खत्म करते हुए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूल और स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। Now she was the victim of the doctrine of lapse policy of British East India Company. Her husband died, who was the ruler of Jhansi, and she did not have a legal heir, so she adopted a son, जिसको English East India Company ने अप्रूव नहीं किया, and she had to fight for a princely state. उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, वो है नाना साहिब। Now he was the adopted son of पेशवा बाजीराव II, और इनको पेंशन देने से मना कर दिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसकी वजह से ये लोग रिवोल्ट का काफी बड़े लेवल पे हिस्सा थे। एंड द थर्ड वन इज द लास्ट किंग ऑफ द मुगल्स, हुज नेम वाज बहादुर शाह जफर। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये लास्ट मुगल रूलर हैं जिनको किंग का दर्जा दिया जा रहा है। इनके बाद जो भी इनकी संतान होगी उनको प्रिंस का दर्जा दिया जाएगा, मुगल का अब कोई किंग नहीं होगा। तो इस तरीके से पॉलिटिकल ऑपरेशन काफी बड़े लेवल पे हो रहा था, एंड द प्रिंसली स्टेट्स वर ईगर टू फाइट द ब्रिटिश एंड इवेंचुअली गेन कंट्रोल ऑफ द रीजन्स। इस सब्सिडरी अलायंस के काफी सारे शिकार हुए थे, सच एज द स्टेट्स ऑफ हैदराबाद, मैसूर, द मराठास एटसेट्रा। अब इसी के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स भी काउंट किए जाते हैं, बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द पुलिस, द लोअर कोर्ट्स वर हाईली करप्ट, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान थे। राइट, सो द थर्ड रीजन वाज सोशियो-रिलीजियस। अब सोसाइटी में ऐसा क्या हुआ, रिलीजन को कैसे थ्रेटन किया गया, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हुए। द फर्स्ट इशू वाज दैट द ब्रिटिश थॉट देमसेल्फ टू बी रेशियली सुपीरियर। उसके बाद लोगों के अंदर डर आ गया बिकॉज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज। अब इन क्रिश्चियन मिशनरीज को काफी प्रमोट किया जा रहा था ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, जिससे कि लोगों के अंदर ये डर आ गया था दैट दे वर ट्राइंग टू डाइल्यूट द रिलीजन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ कुछ एक्ट्स भी पास करी गई, जैसे कि लेक्स लोकी एक्ट और द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1856। अब इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिससे क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट होना काफी आसान हो गया था, ऐसा लोगों को लगा, वेयर पीपल हैड द राइट टू इनहेरिट देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इवन आफ्टर रिलीजियस कन्वर्जन। तीसरा रीजन था दैट द ब्रिटिश वर टोटली फॉरेनर्स टू द इंडियंस, दे हैड नो सोशल कनेक्ट विद द इंडियन पॉपुलेशन इन द पास्ट। And finally, there were some socio-religious reforms. इन socio-religious reforms की वजह से काफ़ी ज़्यादा discontent आया in the masses, although these were good for the society eventually. But उस टाइम पे लोगों के मन में ये आने लगा कि इन social reforms से उनका religion dilute हो जाएगा, उनकी society, उनके तौर तरीके dilute हो जाएंगे, and eventually they'll be shifted towards Christianity.
अब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स कुछ इस तरीके थे, फॉर एग्जांपल अबॉलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज, विमेन एजुकेशन, इनसे लोगों को काफी परेशानी लगने लगी। अब जिनको शायद नहीं पता होगा, अबॉलिशन ऑफ सती आया था ड्यू टू द बंगाल सती रेगुलेशन ऑफ 1829 और इसको उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इनैक्ट किया था। फिर विडो रीमैरिज आया ड्यू टू द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 विच वॉज प्रमोटेड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन वॉज सपोर्टेड बाय सावित्रीबाई एंड ज्योतिबा फुले। इस तरीके से सोशियो रिलीजियस एंगल भी रिवोल्ट में जुड़ता चला गया। राइट, सो देन केम द इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटसाइड इवेंट्स। अभी आउटसाइड इवेंट्स का मतलब क्या है? Before 1857, over the last 30-40 years, Britain was involved in various revolts and various wars with other countries and regions, जिसमें उसको काफ़ी भारी नुकसान भी झेलना पड़ा था। वो हारा नहीं था, ब्रिटेन हारा नहीं था, लेकिन नुकसान इतना ज़्यादा झेलना पड़ा जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगने लगा that the British were not that supreme, इनको हराया जा सकता है, इनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। एंड सिंस they were involved in various Asian war जहाँ पे इनको नुकसान देखना पड़ा, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि यूरोपियन सुप्रीमेसी एक मिथ है। अगर एक बढ़िया रिवोल्ट किया जाए, एक बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट किया जाए, तो शायद इन्हें हराया जा सकता है। अब ये इवेंट्स कौन से थे? सबसे पहले था द फर्स्ट अफगान वॉर्स ऑफ 1838 टू 1842, देन द पंजाब वॉर्स बिटवीन 1845 टू 49, देन देयर वाज द क्रीमियन वॉर्स ऑफ 1854 टू 56, और एक काफी इंपॉर्टेंट रेबिलियन था विच वाज द संथल रेबिलियन ऑफ 1855 टू 57। Now these wars and revolts were really important for the masses to understand that they had a chance. उसके बाद लास्ट रीजन आता है द डिसकंटेंट अमंग द सिपॉयज। सिपाहियों के मन में क्या दुविधा थी। ये सबसे आखिरी इवेंट था लीडिंग टू द रिवोल्ट एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो लास्ट थ्रस्ट था, जो इग्नाइटिंग स्पार्क था, वो इस डिसकंटेंट ने दिया था। अब इसमें रीजंस क्या क्या थे? सबसे पहला ये था दैट द कंपनीज रूल वाज इन कॉन्फ्लिक्ट विद रिलीजियस व्यूज ऑफ द सिपॉयज। सबसे पहले देयर वर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेयरिंग कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स इन द आर्मी। एक बहुत बड़ा रीजन ये था दैट द रिलीजियस हिंदूज स्पेशली ऑफ द अपर कास्ट, इनको ऐसा लगता था कि अगर वो समुद्र को पार करेंगे तो उनकी कास्ट खराब हो जाएगी। दे वुड लूज देयर कास्ट इफ दे क्रॉस द सीज। ये एक बहुत समस्या उठ के आई थी और इससे बहुत परेशानी झेलने को मिली थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये इशू जनरली बंगाल में देखने को मिला था बिकॉज मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी के जो सिपाही थे उन्होंने अग्री किया था दैट दे वुड बी रेडी फॉर सर्विस अक्रॉस द सी, लेकिन बंगाल के जो सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया था दैट दे वुड नॉट डू दिस। इसकी वजह से 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक एक्ट पास करी विच वॉज द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट स्पेशली फॉर बंगाल। इस एक्ट की बहुत ही सिग्निफिकेंस थी। इसमें यह बोला गया था दैट ऑल फ्यूचर रिक्रूट्स ऑफ द बंगाल आर्मी विल हैव टू डू ओवरसीज ड्यूटी इफ रिक्वायर्ड। अभी तक जो लोग नहीं करना चाहते वो ना करें, लेकिन जो आने वाले टाइम में जिन लोगों को भर्ती किया जाएगा आर्मी में, उनको ओवरसीज ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। अगर वो हाँ करेंगे तो ही उनको आर्मी में लिया जाएगा। इससे जो ये रिलीजियस हिंदूज थे ये काफी धर्म संकट में फंस गए थे बिकॉज द अपर कास्ट पीपल हैड अ ट्रेडिशन कि अगर पिताजी आर्मी में है तो उनका बेटा भी आर्मी में जाएगा। और पिताजी ये रिलीजियस होने की वजह से, हिंदू होने की वजह से, अपर कास्ट होने की वजह से अगर ये कह रहे हैं दैट ही इज नॉट अवेलेबल टू सर्व अक्रॉस द सी, और बेटे को अगर आना है आर्मी में तो उनको ये एक्ट के अंडर अग्रीमेंट देना पड़ेगा। और मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी की आर्मीज में ऐसा नहीं था बिकॉज बोथ दीज प्रेसिडेंसीज वर कास्ट न्यूट्रल। अलग अलग कास्ट के अलग अलग लोग यहाँ पर मिक्स थे। लेकिन बंगाल की आर्मी में स्पेसिफिकली अपर कास्ट हिंदूज और वेल्दी मुस्लिम्स, जो अमीर मुस्लिम होते थे, उन्हीं को भर्ती किया जाता था। उनका ट्रेडिशन था आर्मी में आने का। इन तीनों प्रेसिडेंसी की आर्मीज में रफली 50,000 ब्रिटिश ट्रूप्स थे और उनके कंपैरिजन में 3 लाख इंडियन ट्रूप्स थे। अब आप बेशक इनको सिपाहियों की तरह देखो, लेकिन ओवरऑल ये भी इंडियंस थे। इनके रिलीजियस कमिटमेंट्स थी। दे वर बेसिकली पेजेंट्स इन द यूनिफॉर्म। ये लोग छुट्टी जाते थे तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में काम करते थे। इनके पास भी एग्रीकल्चरल लैंड था। ऑल्दो दे वर सर्विंग इन द आर्मी बट दे हैड द रूट्स इन द इंडियन ट्रेडिशन। उसके बाद सेकेंड रीजन था दैट द इंडियन सिपाही एंड द इंडियन ऑफिसर्स वर गिवन पुअर सैलरी, पुअर एमोल्यूमेंट्स एज कंपेयर टू द ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स। इनको प्रमोशंस में कम अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। इनको फॉरेन सर्विस करने पे, दूसरे प्रोविंसेस में सर्विस करने पे भत्ता नहीं मिलता था, जो कि एक बहुत ही बड़ा रीजन था डिसकंटेंट का। एक रीजन और था विच वॉज द एनेक्सेशन ऑफ अवध। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पे कब्जा कर लिया था। उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स उठ के आई थी बिकॉज बंगाल की जो आर्मी थी इसमें काफ़ी सारे जो सोल्जर्स थे, काफ़ी सारे जो सिपाही थे, दे वर फ्रॉम अवध।
और 1856 में जब ये हुआ था उसके बाद ये काफ़ी डर गए थे बिकॉज इनका लैंड जो था वो भी छीना जा रहा था, इनको काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे, रेवेन्यू सिस्टम काफ़ी हार्श हो गया था, दे हैड टू अपीयर इन कोर्ट्स टू गेट देयर लैंड बैक, और इनको ऐसा लग रहा था कि दे वर सर्विंग एन एम्प्लॉयर विच वॉज स्नैचिंग देयर ओन लैंड। ये क्रिश्चियन मिशनरीज से भी काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। सिपाहियों को लगता था कि क्रिश्चियन मिशनरीज धीरे धीरे उनके रिलीजियस व्यूज़ और रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ को डाइल्यूट कर रहे हैं। उसके बाद सबसे एंड में और सबसे बड़ा स्पार्क जो आया विच वॉज ड्यू टू दी एनफील्ड राइफल। इस एनफील्ड राइफल ने और इसकी कार्ट्रिज ने पूरी रिवोल्ट को एक रास्ता दे दिया। सो दिस वॉज द कार्ट्रिज ऑफ द एनफील्ड राइफल, और ये राइफल को यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। इसको यूज़ करने का तरीका ऐसा था कि इस कार्ट्रिज में से बारूद निकालना होता था, उस बारूद को राइफल के अंदर डालना होता था, उसमें बुलेट बॉल डाली जाती थी जिसको फायर किया जाता था और इससे बारूद को अंदर फिट किया जाता था एंड फाइनली इट वॉज फायर्ड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस कार्ट्रिज को हाथ से फाड़ने में बहुत दिक्कत आती थी, इसलिए इसको मुंह से छीलना पड़ता था, जिससे सिपाहियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हुई। वो दिक्कतें क्या थी वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अब ये थी एनफील्ड P53 राइफल, और जिस कार्ट्रिज की हम बात कर रहे हैं ये एक पेपर कार्ट्रिज होती थी विच वॉज प्री ग्रीस्ड। पीछे से ही ये ग्रीस होके आती थी, और क्योंकि इसको मुंह से छीलना होता था तो ग्रीस दांतों में भी लगता था, और ज़्यादातर सिपाहियों को ऐसा लगने लगा दैट दिस ग्रीस वॉज मेड अप ऑफ द फैट ऑफ बीफ एंड पोक। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई क्योंकि बीफ हिंदू रिलीजन में अनएक्सेप्टेड है और पोक मुस्लिम रिलीजन में अनएक्सेप्टेड है। हिंदूज ऑब्जेक्टेड टू बीफ एंड द मुस्लिम्स ऑब्जेक्टेड टू पोक। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने बहुत कोशिश की कि लोगों का जो ये विश्वास था, जो ये रूमर था, जो भी था, इसको दूर किया जाए, एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट टू सॉल्व द इशू। इन्होंने सिपाहियों को ऐसा बताना शुरू किया कि इस ग्रीस में कोई भी एनिमल फैट नहीं है। इवेंचुअली इन्होंने ये तक कह दिया कि सिपाही जैसा ग्रीसिंग चाहे खुद कर सकते हैं, हम बिना ग्रीस के कार्ट्रिज प्रोवाइड करेंगे, आप खुद से ग्रीस करो, जैसे मिक्सचर से करना चाहते हो वैसे मिक्सचर से करो, यू आर फ्री टू डू दिस। इससे और ज़्यादा सिपाहियों को ऐसा लगने लगा कि ये रूमर नहीं है, ये सच है, क्योंकि अब ये नया ऑर्डर आ गया है, एंड दे थॉट दैट देयर ऑब्जेक्शन इज जस्टिफाइड। इस स्पार्क से आग लगती गई और धीरे धीरे रिवोल्ट अपनी शेप पकड़ता गया और सभी सेक्शन धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व होते गए फॉर देयर ओन इंटरेस्ट्स, एंड इवेंचुअली टुक द शेप ऑफ अ मास रिवोल्ट। Right, so these were the various reasons for the revolt of 1857. I hope that you enjoyed the video. Thank you. So this is it for this video. The PDF notes for this video are available on the Civil Coursify Android app for free. Subscribe to our YouTube channel, download the Civil Coursify Android app, and follow us on Facebook and Telegram. Links are available in the description as well as comment section. Till then, thank you and take care.